नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर और इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां एक फिल्म का विमोचन किया जा रहा है जिसमें लिखा है प्रेम की सुरधारा। और इस फिल्म की खासियत यह है कि इसमें एक संदेश है, प्यार भरा संदेश है। इस फिल्म से जुड़े हुए विश्वरूप राय चौधरी भी जुड़े हुए हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड प्रेजेंट कर रही है इस फिल्म को, और आज इसमें मीडिया के माध्यम से विश्वरूप राय चौधरी जी और फिल्मी कलाकार क्या संदेश देना चाहते हैं, सनसनी आज इनसे चर्चा करेगा और अपने सवालों को जैसे हर बार पूछता है वही पूछ के आपके सामने लाएगा कि इस फिल्म के माध्यम से वो भारतवासियों को, दुनियावासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। आइए फिल्मों के कलाकारों से बात करते हैं, डॉक्टर विश्व राय रूप चौधरी जी से भी बात करते हैं और जितने अतिथि करने आए उनसे भी बात करते हैं। And beloved artists from India and Vietnam. Today, I, Neha Tyagi, welcome you all on the behalf of India Book of Records. Welcome you all here for the press conference for personal launch of world's first Indo-Vietnam cultural heritage film. It is with immense pride and heartful joy that we gather here today at the historic Constitution Club of India to mark the milestone in global cultural unity. The announcement of the world's first international feature film dedicated to Indo-Vietnam cultural heritage, Wanted You, Prem Ki Sudhara. This is extraordinary project championed by the India Book of Records is more than just cinema. Now, I would like to request Mrs. Neeja Roy Chaudhary, the managing editor of India Book of Records, to kindly come and honor all of our guests. Dr. Nguyen Hoc Anh, Julia Ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. Artist Gopi Krishna Burman. Welcome you so here. Yes. This is Kishori Shami Vej. We welcome you, ma'am. All of you, please put your hands together. Yes, ma'am. Yes. Thank you. Ms. Suchita Kulkarni. Mr. Vimal Mishra. Mr. Vishwadeep Roy Chaudhary. Yes, yes. Thank you so much, ma'am. We welcome you all here. Now, I request our esteemed dignitaries to initiate the postal launch ceremony. I would like to request Neeja ma'am to give 200 years old for Mandan to Professor Chu Wai Kyu for the inauguration. Thank you. Thank you. Will you please unribbon the folder in front of you and just please carry it out? Please open the folders before you. I request everyone on the stage to kindly open the folders. Yes, yes.
सामने Thank you. Thank you everyone. Now it is the time to have the most awaited moment of this day, inauguration of the poster launch ceremony. So, I would like to request Rita ma'am to please open the poster. you have to put it in. Thank you so much everyone. Now I would like to request Ms. Neerja Roy Chaudhary to please. Before the world recognized him, India Book of Record honored him in 2021 for being the first actor with Down syndrome, and his record was published in 2022 edition. Let me show you the edition. This is the edition. And here is the record of Gopi Krishnan Verma. So we hope this movie will strengthen the bond between India and Vietnam more. This is the effort of India Book of Records and Vietnam Records Organization. And now, for further details, I hand over the mic to Professor Chu Bao Q, a Vietnamese folk artist. Sir. Tôi từ Việt Nam sang, tôi thay mặt là những người nghệ sĩ về dân ca dân gian chúng tôi cảm ơn tất cả đất nước Ấn Độ và kỷ lục của Ấn Độ và tất cả các quan khách đã có mặt và đại sứ quán của Việt Nam chúng tôi cũng có mặt ngày hôm nay và tất cả hãng phim rồi cũng như báo đài đưa tin điện tử chúng tôi những tình cảm của Việt Nam tôi dành cho những tình cảm để lời chào trân trọng nhất với các đồng chí. Ladies and gentlemen, on behalf of Vietnam delegation, I really want to say thank you for all the VIP guests, all the media, all the people, and especially the Vietnamese ambassador to be here today. From the bottom of my heart, I want to say thank you for all. Và cuộc đời của tôi là một nghệ sĩ dân gian bảo tồn văn hóa dân tộc cho quê hương chúng tôi, cho đại diện cho quê hương đất nước Việt Nam chúng tôi. Yeah, I am a Vietnamese folk artist. So all of my life, I just have one mission that I want to protect and safeguard the Vietnam heritage through quan học. Tôi rất cảm ơn Dr. Huy và kỷ lục của Ấn Độ đã mời tôi tham gia trong bộ phim này, cũng như là trong tiểu sử cuộc đời của tôi là một nghệ sĩ dân gian của Việt Nam. Yeah, I want to say especially thank you for Dr. Viswarod and India Book of Records who can recognize me and through the book of my life that Guardian Heritage. And now through the movie, this movie, I once again the culture of between India and Vietnam. Tôi cũng rất muốn trong bộ phim giữa đất nước Việt Nam của tôi và Ấn Độ để hiểu hơn được cái tình đoàn kết giữa hai đất nước, cũng như cái sự kết nối về văn hóa giữa hai quốc gia và thế giới hiểu hơn cho hai đất nước Việt Nam của tôi và đất nước Ấn Độ.
and through this movie, I hope the relationship between India and Vietnam, and especially the heritage of Vietnam and India, also can be a stronger relationship. Tôi không biết nói gì và tôi cảm ơn tất cả các quý vị có mặt quan khách của ngày hôm nay và báo chí truyền hình, và cảm ơn ekip đạo diễn, nhà biên kịch cũng các diễn viên cùng tham gia bộ phim Vườn Tình Yêu. Tôi xin cảm ơn chân thành. Once again, I want to say thank you for all of you to be here, and especially I want to say thank you for the director, the movie team, actor, actress. So to the Vườn Tình Yêu, I really want to say thank you for all. Thank you. बहुत प्यारी मूवी है, मैं इतना ऑलरेडी आपको बता सकती हूँ। वो एक जो फीलिंग होता है ना बहुत दिनों बाद जब हम घर लौटते हैं, तो जब घर में माँ के हाथ का दाल चावल खाने में जो मज़ा आता है, या किसी बारिश वाले दिन एक अच्छी सी हॉट चॉकलेट पी के जो एक सुकून मिलता है, ये कहानी कुछ वैसी है। तो जैसे आज आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है, आपका वक्त दिया है, मैं उम्मीद करती हूँ that the day when our film is released, you will give us a lot of love and shower us with a lot of blessings. And thank you once again. Thank you so much, ma'am. I would like to request Kishori ma'am also to please say a few words on this. Namaskar, good morning. Ciao, respectable dais, Professor Dr. Shubha Okyu, IBRK, Dr. Vishwaroop Roy Chaudhary, Julia, यहाँ पे उपस्थित सभी मदर गेस्ट, विमल मिश्रा जी, विश्वदीप जी, and our actors, Sanjita is here, Gopi Krishna ji is here, हमारे जो वियतनामीज actors हैं उनका भी स्वागत, and जो हमारे ambassadors हैं, embassy से हैं उनका भी स्वागत। मेरा बेटा भी यहाँ आया हुआ है, बॉबी विच जो जान तेरे नाम सुपर हिट फिल्म थी उसका सीक्वल बन रहा है, तो 2 पार्ट जो जान तेरे नाम जो भी हीरो हैं बॉबी विच वो भी आए हैं, अपनी माँ को सपोर्ट करने आए हैं। और ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनने जा रही है इंडिया और वियतनाम के कल्चर को जोड़ने के लिए। और जैसे कि हम देसी भारतीय जो लोग होते हैं सभी को प्यार से वेलकम करते हैं, तो इस कल्चर को भी बहुत प्यार से वेलकम कर रहे हैं। और ये एक वन ऑफ इट्स काइंड इंडो वियतनामीज फिल्म बनने जा रही है। हमारा जो नाम है व्योम तीन क्यों, इसका मतलब है प्रेम की सुरधारा। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ, सोशल वर्कर का रोल कर रही हूँ इसमें। और ये जो गार्डियन ऑफ हेरिटेज ये जो किताब छपी है BRCG ने डॉक्टर शुभाओं के जीवन पर, तो उसी से ये प्रेरित है। और मैं चाहती हूँ कि आप मीडिया पत्रकार हमारे मित्र हैं, इस फिल्म को बहुत सपोर्ट कीजिए। और बहुत जल्द ये 14 फरवरी को रिलीज है, तो इसका शूटिंग भी होने वाला है, इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस्ड है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मूवी। वैसे आप भी हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय वियतनाम। Thank you so much, Kishori ma'am, and we all are here for the support of you. I would like to request Gopi also to say a few words on this. Hello. Hello. Hi, I am Gopi Krishnan Purnama. I am happy. I am happy that Dr. Chibaho sir saw super nice. My India abroad film
surprise. Thank you. Thank you so much, Gopi sir. Now, the floor is open for the question answer round, and I would like to request the creative director, Vishwadeep Roy Chaudhary, to initiate the question answer round. Please come, sir. सारे पत्रकार साथियों को आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सुदीप राय चौधरी आपका स्वागत करता हूँ। हमारे इस फिल्म के पोस्टर रिलीज पे जिस फिल्म का टाइटल है वन तेल जाओ धारा, और भारतीय सिनेमा में पहली बार एक ऐसी कोशिश की जा रही है जो इससे पहले कल्पनाओं से भी परे था, और पहली बार हम वियतनाम के संस्कृति को भारतीय पर्दे पर बिल्कुल भारतीय अंदाज में आपके समक्ष पेश करेंगे। और जब ये फिल्म रिलीज होगी यानी 14 फरवरी अगले साल यानी वैलेंटाइन डे में, तो आप लोगों को बहुत सारा सरप्राइज मिलेगा। और ये सरप्राइज इसलिए मिलेगा क्योंकि इस फिल्म के पीछे दो व्यक्ति की प्रेरणा है जिसका गौरवपूर्वक और आदरपूर्वक मैं नाम लेना चाहूंगा प्रोफेसर चू बाओ क्यू सर का, जो वियतनाम के एक बहुत मशहूर और लोकप्रिय फोक आर्टिस्ट हैं। और मैं जब वियतनाम में था तो मैंने इनके कला को और इनकी लोक संस्कृति को बहुत करीब से देखा, और मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझे लगा कि इसे भारतीय सिनेमा तक क्यों न लाया जाए। और इस भावना के पीछे एक और वजह थी, वो थे डॉक्टर विश्वरूप सर, जिन्होंने 14 फेब को यानी इसी साल को प्रोफेसर चू बाओ क्यू के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी, और उसी बायोग्राफी से इंस्पायर्ड होकर मैंने और मेरी टीम यानी विमल मिश्रा और संचिता कुलकर्णी और किशोरी मैम ने ये सोचा क्यों ना एक बहुत प्यारी सी फिल्म आपके समक्ष लाए जो जीवन को एक अलग मायने दे, जो संस्कृति को एक अलग मायने दे, और एक ऐसी फिल्म आपके समक्ष आ सके जो पूरे परिवार के साथ आप देख पाए और पूरे परिवार के साथ इस मनोरंजन का हिस्सा हो पाए। कहानी तो अभी मैं नहीं आपके आगे ओपन कर सकता हूँ, बट मैं ये वादा करता हूँ कि जब अगले साल ये फिल्म रिलीज होगी तो ये एक उदाहरण न केवल आपके आगे पेश करेगा बल्कि ये एक माइलस्टोन भी बनेगा भारतीय सिनेमा में। और इसके बाद जब भी वियतनाम कल्चर का जिक्र होगा तो इस फिल्म का जिक्र होना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा ये फिल्म इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बना रहा है। मैं विगत 10 वर्षों से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ रहा हूँ, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जितने भी अनूठे टैलेंट हैं उन्हें राष्ट्रीय मंच पर चिन्हित भी करता है, उन्हें प्रतिष्ठित भी करता है, उन्हें स्थापित भी करता है, और उन्हें मौका देता है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए। और इसी वजह से आज हमारे बीच में गोपी कृष्णन भी है, जिन्होंने इस फिल्म में एक स्पेशल भूमिका निभाई है। और मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा, ये तो गेस करने की जरूरत नहीं है कि वो कॉमेडी में कितने स्ट्रॉन्ग हैं, तो जब उनका रोल इस फिल्म में आप देखेंगे तो आप गुदगुदाएंगे भी, आपको बहुत मजा भी आएगा और इसे आप जीवन भर याद भी रखेंगे। गोपी आज हमारे बीच में है, इसलिए गोपी को बहुत देर से धन्यवाद। और मैं निर्जा मैम का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि निर्जा मैम ने जो है ये मौका आज हमें दिया है कि हम इस फिल्म को बना सके। थैंक यू मैम। और मैं जूलिया मैम का भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि वो वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड से हैं और उनका भी सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जब वियतनाम में था तो हमारे इस कल्चर को समझने के लिए जो इनका कल्चर था और जो हमारा कल्चर था उसको साझा मंच दिलाने में जूलिया मैम का भी बहुत सहयोग रहा, तो मैं दिल से उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसके साथ ही अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो मैं उसे आपके आगे रखूंगा। धन्यवाद। इंग्लिश वर्जन है ना हिंदी वर्जन? नहीं, ये फिल्म आपको हिंदी भाषा में दिखाई जाएगी। ये बॉलीवुड फिल्म है पूरी तरह से, और ये बिल्कुल आपकी ही अपनी भाषा में आएगी। किसी भी फिल्म को हिट कराने के लिए, लोगों की पसंद बनाने के लिए एक बड़े स्टार कास्ट की जरूरत है। आप भी बड़ा स्टार कास्ट के लिए तो कैसे आपको लगता है कि फिल्म हिट होगी या अच्छा चलेगी? देखिए, मैं नहीं मानता कि किसी बड़े स्टार कास्ट की आवश्यकता होती है, फिल्म को एक अच्छी कहानी की जरूरत होती है। आज अगर आप देखेंगे जो हिंदी सिनेमा है इसमें कई
बड़े स्टार्स की फिल्में नहीं चल रही है और कई उभरते कलाकारों की फिल्में चल रही है। तो फिल्म की जो कहानी होती है, फिल्म का जो पटकथा होता है, फिल्म में जो कलाकार होता है वो कितना बांध पाते हैं। सिनेमा अब जो है कलाकारों से नहीं चलता है, सिनेमा अब कहानी से चलता है और एक सशक्त कहानी जो कोई नई बात कह सके उसी से जो है फिल्म का जो है हिट या फ्लॉप तय होता है। और इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और विश्वास कीजिए मेरा कि जब ये फिल्म आएगा तो भारत का हर व्यक्ति इसको एक बार सिनेमा हॉल में देखना ही चाहेगा। ये आपके उत्तर का। ये एक फिल्म जो आज जिसका पोस्टर लॉन्च था, इंडो वियतनाम कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए फिल्म है वुन तुन ये प्रेम की सुरधारा फिल्म की नाम है। और इस फिल्म में वियतनाम के कलाकार, इंडिया के कलाकार मिलके काम करेंगे। दोनों देशों में शूटिंग शुरू होगी अगले महीने से। और भारत और वियतनाम का जो कल्चर है वो कल्चर एक टाइम पे एक ही था, सिमिलर नहीं, एक ही था। चैन सिविलाइजेशन भारत वियतनाम में जाएंगे। आज भी हनोई में एक जगह है जहाँ पे जाने से ऐसा लगेगा कि हम भारत में पहुँच गए हैं। वहाँ के मंदिर बिल्कुल भारत की तरह है। तो वो जो सिविलाइजेशन, वो जो कल्चर, वो जो फोक कल्चर था, वो जो म्यूज़िक पहले का था जिसमें जो समानताएं थी, वो वहाँ से हमने इंस्पिरेशन ली है और वो लोगों के सामने हम लाना चाहते हैं जो कि भूल चुके हैं। और इसमें खास बात है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज जो हमारे कलाकार हैं अलग अलग फील्ड के, इंक्लूडिंग गोपी किशन जिसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2022 एडिशन दर्ज है, इनको एक मौका दे रहे हैं ताकि इनके जो टैलेंट है वो भी इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। तो फिल्म को बनाने का बेसिक मकसद है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स जो टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं उनको मौका देना और इस मौके से एक नया मैसेज कल्चरल, जहाँ तो देश पड़ोसी देश में वॉर हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान बोलें या फिर यूक्रेन रशिया बोलें, वहाँ एक प्रेम का संदेश देना चाहते हैं। तो इस मकसद से हमने ये फिल्म तो सब आने वाले समय में क्या और भी ऐसी फिल्में देखी जाएंगी? हाँ, ये है कि जिस तरह से इनकरेजमेंट मिल रहा है और मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्म, इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनेंगे। डॉक्टर इंडिया बुक रिकॉर्ड फिल्म इंडस्ट्री में अपने जो हाथ आदिवास कर रहा है अपने कौन से फिल्म में ये देखिए, इस साल फरवरी 14 को एक किताब रिलीज़ हुई थी, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने रिलीज़ की थी, गार्जियन ऑफ हेरिटेज। वो किताब के एक इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। वो एक बुक हो सकती है, वो ये जो सवाल जवाब है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है, वो एक मूवी हो सकती है। तो मेन मकसद कोई बॉलीवुड में जाने का नहीं है। मेन मकसद सिर्फ इतना है कि हम कम्युनिकेट करना, लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और फिल्म एक मीडियम है, जैसे ये इंटरव्यू एक मीडियम है।